Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadvani and today we will be studying part 2 of ISC Economics chapter 2, that is elementary theory of demand. तो जिसका आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसमें we will understand about law of demand, its assumptions, exceptions, the curve and the increase and decrease and the expansion and contraction of demand curve, means movement and shift in the demand curve. Okay, so if you have not seen the previous video, you have to see that first so that you are able to understand कि जो basic concept है या curve बनाते कैसे हैं, तो that you should be knowing. Okay, so the first one is law of demand एंड द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड. मतलब लॉ ऑफ डिमांड आपसे क्या कहता है? वो आपसे सिर्फ ये कहता है, जो हम लोग इतने फर्स्ट वीडियो में जितनी बार मैंने ये चीज़ बताई थी आपको, कि वो आपसे सिर्फ ये कहता है कि वेन एवर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज़ इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर द कमोडिटी विल डेफिनेटली फॉल, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम. when you are talking about these other things are constant, ठीक. तो हमने इन अदर थिंग्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे. अपार्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ द कमोडिटी देर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स ऑल्सो दैट रिमेन कॉन्स्टेंट. प्राइस विल इंक्रीज और डिक्रीज, प्राइस इज गोइंग टू चेंज. ठीक है, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको ये बताते हैं कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी विल ऑलवेज बी इनवर्स. क्योंकि अगर प्राइस जो है यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड फॉल होगी, और अगर प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो फिर डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी. ठीक, हेंस इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप एंड अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट. व्हाट आर दोज अदर थिंग्स? दैट इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. ठीक, all these things will remain constant. The price of related goods, these things will remain constant. This is known as law of demand. So the law of demand states that other factors being constant, जिसको हम ceteris paribus भी बोलते हैं, the price of a good or service and its quantity demanded are inversely related to each other. When the price of a good will increase, the demand for the same product is going to fall and vice versa. Vice versa means just opposite situation, कि अगर price of a commodity will fall, then the demand for the same commodity is going to increase. And that clarifies कि consumer की जो choice है that keeps on changing as the price is variant, price also keeps on changing. It represents the qualitative decision, the direction of the change rather than the specific quantitative magnitude. मतलब कि both price and quantity will always move in the opposite direction as far as law of demand is considered. Okay, so the next, again there are certain definitions that are given. In general you don't have to rote memorize all these definitions, but yes, you need to understand the concept that the amount demanded increases with a fall in the price and diminishes with a rise in the price of a commodity. Now we will move towards the assumptions of the law of demand. Assumptions of law of demand means कि in what circumstances. ओके, assumptions means कि कौन से ऐसी conditions हैं या कौन सी ऐसी circumstances हैं जिसमें ये जो लॉ ऑफ डिमांड है, सर्कमस्टांसेस यू कैन से इट एज सिचुएशन. आम लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में आप इनको इन्वर्ट से जान सकते हो, बट इकोनॉमिक्स के टर्म्स में इट इज़ असम्पशंस, मीन्स वो कंडीशंस जिस पे लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई करेगा. वो ये कह रहा है कि जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है अपार्ट फ्रॉम द वन थिंग दैट इज चेंजिंग इज़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जितने बाकी सब फैक्टर्स है सब के सब कॉन्स्टेंट रहेंगे. Price of a commodity will keep on changing, the demand will change, but the taste and preferences will remain unchanged. There will be no change in the money income of the consumer, because अगर income increase होगी तो फिर demand for normal goods will increase. the price कम हो ज़्यादा हो उससे matter नहीं करेगा, इतना नहीं करेगा. ठीक, price of related or substitute goods as well as complementaries will not change. Consumers do not expect any further rise in the price of a commodity. मतलब फर्दर और फ्यूचर वेरिएशंस वो देख रहे हैं कि वो नहीं होगा. तो दीज एक्सपेक्टेशंस विल रिमेन सेम. देयर विल बी नो चेंज इन द टोटल साइज, स्ट्रक्चर और जेंडर प्रोफाइल ऑफ द पॉपुलेशन, मीन्स इट विल ऑल्सो रिमेन सेम. द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विल ऑपरेट. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो आपसे ये कहता है कि एज द
कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इज़ गोइंग टू इंक्रीज, जैसे आप किसी भी कमोडिटी का जो कंजम्पशन है उसको इंक्रीज करते हो, जो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है दैट कीप्स ऑन फॉलिंग, द मार्जिनल यूटिलिटी या जो उससे एडिशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है हर एक यूनिट को कंज्यूम करने से, वो एक टाइम बाद फॉल ही होने लगता है. द आइटम इज़ अ नॉर्मल गुड, ऑब्वियसली इन्फीरियर होगा, तो अगर उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो आप उसकी डिमांड ज़्यादा करोगे. एंड एग्जिबिटिंग अ पॉजिटिव इनकम इफेक्ट मीन्स द इनकम विल इंक्रीज विद द फॉर अ नॉर्मल प्रोडक्ट, जो हमने लास्ट टाइम पर पढ़ा था. तो व्हाट डज द लॉ ऑफ डिमांड से? अब ये जो पार्ट है, ये जितना भी सेक्शन आई एम शोइंग यू ऑन द स्क्रीन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. काउंसिल जब भी आपसे लॉ ऑफ डिमांड पूछता है, वो अगर आपसे कह रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करो, तो वो सबसे पहले आपसे पूछेगा लॉ ऑफ डिमांड की मीनिंग. ठीक, आई गेस दिस इज़ विजिबल. लॉ ऑफ डिमांड की सबसे पहले वो पूछेगा आपसे मीनिंग, फिर वो पूछेगा आपसे अजम्पशंस, फिर आपसे बोलेगा कि एक हाइपोथेटिकल शेड्यूल बना करके दो और उसी का ही हाइपोथेटिकल कर्व बना करके दो. अब ये देखो कि ये बना कैसे, ये वाला कर्व. तो आई एम मेकिंग इट हेयर समवेयर, जहाँ पर दिस इज़ प्राइस, दिस इज़ क्वांटिटी, दिस यू हैव सीन. ठीक, व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, तो यहाँ पर हम इस कर्व को बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें यहाँ पर जो है ये प्राइस दिया हुआ है. दिस इज़ द प्राइस पार्ट, दिस इज़ द क्वांटिटी पार्ट. ठीक, 10, 8, 6, 4, तो हम दो दो की यूनिट्स में इसको कर सकते हैं. दिस इज़ 4, 6, 8 एंड 10. दिस इज़ एंड इट इज़ 2, 4, 6 और 8. दोनों ही तरफ से आप देखोगे कि हेयर ऑल्सो इट इज़ इंक्रीजिंग एंड हेयर ऑल्सो इट इज इंक्रीजिंग. तो 10 पर इट वॉज 2, when it was 10 it was 2, when it was 8 price was 8, the quantity was 4, when it was 6 it was again 6, and when it was 4 it was 8. ठीक, तो कर्व कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा. दिस इज़ द लॉ ऑफ डिमांड. इसी को ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड की प्लॉटिंग करना, जहाँ पर यू कैन सी कि हेयर इज़ द ए प्राइस दैट इज़ 8, हेयर इज़ द बी प्राइस दैट इज़ 4. ठीक है, दिस इज़ हाउ द कमोडिटी, यही ऐसे हमने किए. प्राइस यहाँ पर 8 है, प्राइस यहाँ पर 4 है. ठीक, दिस इज़ हाउ दिस लॉ ऑफ डिमांड कर्व इज़ मेड. ओके, नेक्स्ट द अगेन फर्दर उसमें फॉल शो किया गया है. नेक्स्ट इज द कॉजेज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. अब ये जो क्वेश्चन होता है, ये एग्जाम्स में आई हैव सीन वेरी रेयर कि ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जाए, तो स्पेसिफिकली तो इसको नहीं पढ़ना है, बट येस फॉर सेफर पर्पस आप इसको पढ़ सकते हो. सबसे पहले दिया हुआ है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट कर रहा है. दैट टेल्स यू कि जैसे जैसे एक पर्सन एडिशनल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी को इंक्रीज़ करता है या कंज्यूम उसका कंजम्पशन इंक्रीज़ करता है, जो उससे मार्जिनल सेटिस्फैक्शन है वो मिल रहा है, वो कम होता जा रहा है. अ कंज्यूमर विल ओनली बाय मोर वॉल्यूम्स इफ द प्राइस ड्रॉप्स प्रोपोर्शनली मैचिंग टू इट्स डिक्लाइनिंग यूटिलिटी एक्सपीरियंस. मतलब जनरल मतलब उसका सिर्फ इतना से समझो कि अगर ग्लास ऑफ वाटर है, यू आर टेकिंग द फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, यू आर सेटिस्फाइड वेल, द सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर से आपको थोड़ी सी कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी. ठीक है, कोल्ड ड्रिंक का ही एक सिप ले लो. अ गुड सिप ऑफ स्टैंडर्ड सिप ऑफ कोल्ड ड्रिंक विल गिव यू मोर अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन. जब आपने सेकेंड लिया तो थोड़ा सा वो कम होता है. तो वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स दैट इज़ वाई कि अगर प्राइस जो है वो फॉल होगा, वो इतना फॉल होना चाहिए कि मार्जिनल यूटिलिटी से वो मिक्स हो. मार्जिनल मीन्स एडिशनल यूटिलिटी, एंड उसके साथ ही वो उसको कंजम्पशन ज़्यादा करेगा लॉ ऑफ डिमांड में. तो दिस इज़ वन ऑफ द क्लास 12 का कॉन्सेप्ट. इफ़ यू वांट टू स्किप दिस एज ऑफ नाउ यू कैन. नेक्स्ट इज़ इनकम इफेक्ट. इनकम इफेक्ट कहता है कि अगर जो प्राइस है वो रिड्यूस हो रहा है, तो कंज्यूमर की जो रियल परचेजिंग पावर है वो ज़्यादा हो जाएगी. रियल परचेजिंग पावर मतलब कि सपोज करो प्राइस जो है पहले 100 रुपये था किसी भी प्रोडक्ट का, अब वो जो प्राइस है वो 100 से कम होकर के वो 80 रुपये हो गया है. ठीक, तो अब क्या था, सपोज कंज्यूमर की इनकम पहले क्या थी, वो थी 100 रुपये, तो इतना ही उसको खर्चा करना होता था, स्पेंड करता था. अब कंज्यूमर के पास जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो है अब हो गया 80, तो अभी भी उसके पास 20 रुपये बचे हैं. वो चाहे तो मोर यूनिट ऑफ एनी कमोडिटी वो खरीद सकता है. दिस इज़ नोन एज कि उसकी जो रियल इनकम है वो बढ़ जाती है अगर जो रिडक्शन है वो होता है. दैट इज़ नोन एज इनकम इफेक्ट. नेक्स्ट इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, कि अगर किसी एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है दैट
व्हेन एन आइटम्स प्राइस ड्रॉप्स वाइल द सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे यहाँ पर हमने बात की थी टी और कॉफ़ी की, तो अगर सपोज करो कि किसी एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो ड्रॉप हो रहा है, दूसरे का प्राइस जो है वो फिक्स है, then it will become relatively cheaper, prompting shoppers to substitute the costlier alternative with the cheaper product. For example, swapping Pepsi और Coke, तो जो cheap हो जाएगा, जो expensive हो जाएगा, हम उसको छोड़ करके जो अभी भी सस्ता है हम उसी को परचेज करेंगे. That is known as substitution effect. Next is change in the buyers, कि अगर लोअर प्राइस टैग्स है तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द थ्रेशोल्ड, जो नए बायर्स हैं वो भी आएंगे, ठीक, जो पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे अभी भी वो अफोर्ड करेंगे, तो इट विल ऑल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ द बायर्स अगर प्राइस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. तो दे आर टेलिंग कि क्या क्या रीज़न है जिसके कारण लॉ ऑफ डिमांड जो है वो ऑपरेट करता है. देन देर आर ऑल्टरनेटिव यूजेस. इफ़ देर इज़ हाई प्राइस तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट द एसेंशियल टारगेट्स लाइक चाइल्ड न्यूट्रिशन. प्राइस अगर रिड्यूस हो जाता है तो सेकेंडरी एप्लीकेशन जैसे मेकिंग चीज़, बटर, स्वीट्स, ये सारी चीज़ें भी बहुत ही ईजिली आप कर सकते हो. इफ़ यू आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ मिल्क, तो अगर ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं तो वी आर गोइंग टू कंज्यूम मोर ऑफ अ कमोडिटी इफ़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज़ गोइंग टू बी रिड्यूस्ड. नेक्स्ट इज़ द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. ये अजम्पशंस का जस्ट ऑपोजिट होता है. अजम्पशंस कहता है वो कौन सी कंडीशंस हैं जिस पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करेगा. एक्सेप्शंस कहता है कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिस पर लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई. व्हाट डज द लॉ ऑफ डिमांड मीन्स? It means it states that when the price of a commodity will be higher, the quantity demanded will be lower. When the price of the commodity will be lower, the quantity demanded will be higher. Other things remaining same. तो ये कह रहा है कि कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं, बिकॉज ऑब्वियसली एक्सेप्शंस विल बी देयर एवरीवेयर, ठीक. तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं करेगा. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गिफन गुड्स के बारे में. गिफन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? वो डेली गुड्स, यू कैन से दीज आर द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ एंड दीज आर दोज हाईली इन्फीरियर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ. जैसे लो ग्रेड पोटैटोज़ हो गया, जो दैट पीपल कंज्यूम, जो मेनली जो लो इनकम ग्रुप्स में आते हैं. अगर किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो फॉल होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट गिफन गुड्स हियर. गिफन गुड्स को हमेशा हम लोग जो है वो उसके प्राइस के टर्म्स में यूज़ करते हैं. इन्फीरियर गुड्स कैन बी कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ इनकम, बट गिफन गुड्स को हम उनके प्राइस के टर्म्स में कहते हैं. इफ़ द प्राइस ऑफ दीज गिफन गुड्स विल बी फॉलिंग डाउन, उनकी जो रियल इनकम है, अब पर्सन की जो इनकम है वो बूस्ट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक. ऑब्वियसली इसका प्राइस कम होगा तो समवेयर तो वील बी लेफ्ट विथ सम मनी मोर, तो क्या होगा, हमारा जो नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. और इसका जो कंजम्पशन है, अगर इसका प्राइस कम है तो इसकी डिमांड भी कम हो जाएगी. अगर इसका प्राइस ज़्यादा है, हमारे पास नॉर्मल गुड्स ख़रीदने के लिए पैसा नहीं है, हमारी इसकी ही डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी. ओके, तो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन टोल्ड हियर दैट प्राइस a drop in the price, मतलब if the price of the commodity falls, कंज्यूमर के पास जो लार्ज रियल इनकम है वो बूस्ट हो जाएगी. they will reduce the purchases of this basic survival food and upgrade their diet to superior item, जिसको हम कहते हैं normal goods, ठीक. नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ प्रेस्टिजियस गुड्स. प्रेस्टीज गुड्स, और जिसको हम लोग वेबलिन इफेक्ट बोलते हैं, दैट इज़ द प्रीमियम स्टेटस गुड्स. फॉर एग्जाम्पल डायमंड्स हो गया, ज्वेलरी हो गया, हाई एंड लग्जरी स्पोर्ट्स व्हीकल्स हो गया, जो हमारे लिए एक प्रेस्टीज आइटम का, शोशा का, शानो शौकत का काइंड ऑफ रोल प्ले करते हैं, ठीक. थॉस्टियन वेबलिन प्रूव्ड दैट वेल्दी इंडिविजुअल्स बाय दीज प्रिसाइसली बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव. वो इसलिए ऐसे खरीद रहे होते हैं बिकॉज उन्हें पता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है. अगर इनका जो प्राइस होता है वो रिड्यूस होता है तो इनकी जो एक्सक्लूसिविटी होती है वो कम हो जाती है. इसीलिए अगर इनका प्राइस ज़्यादा है, इनकी जो डिमांड है वो ज़्यादा होती है. अगर इनका प्राइस जो है वो कम है, इनकी जो डिमांड है वो भी कम होती है. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस, इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज़ दिस, द क्वांटिटी इज़ दिस, ठीक. If the price of a commodity is increasing, the price of a commodity is increasing from P to P1, the quantity demanded will also increase from Q to Q1. That is known as exceptions to the law of demand. ये exceptions का एक general curve होता है.
जो कौन सा रिलेशन शो करता है, दिस इज़ द डायरेक्ट रिलेशनशिप दैट इज़ बीइंग शोन. जब आप इन्वर्स रिलेशनशिप की बात करते हो तो वो इन्वर्स रिलेशन का कर्व ये होता है. ओके, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग. नेक्स्ट इज कंज्यूमर इग्नोरेंस. कंज्यूमर को नहीं इतना, दे आर नॉट इन्फॉर्म्ड. बायर्स जज स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट क्वालिटी सोली बाय द प्राइस लेवल. उनको ऐसा लगता है कि जो हाई प्राइस प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है वो भी हाई होती है. हैंस इग्नोरेंस मतलब होता है कि कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर कि प्राइस, मतलब उन्हें ये चीज़ लगती है, दे आपके घर पे भी है और इवन यू योरसेल्फ वुड बी द पर्सन जिनको ये लगता होगा कि अरे इसका प्राइस ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती होगी. तो दैट इज़ अ फैक्टर ऑफ कंज्यूमर इग्नोरेंस जो एक्सेप्शन ऑफ डिमांड कर्व में आता है. नेक्स्ट इज़ असेंशियल नेसेसिटीज़, जैसे सॉल्ट हो गया, बेसिक ग्रेन्स हो गया, इमरजेंसी मेडिसिन हो गया, जिनकी डिमांड कर्व परफेक्टली इनलास्टिक होती है. इसको समझ सकते हो ऐसे कि वो चेंज ही नहीं होती है. ठीक, मिनिमम स्टैंडर्ड वॉल्यूम मस्ट बी सिक्योर रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस. तो सपोज करो कि मेडिसिन है, सॉल्ट है, इवन इफ सॉल्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव वी विल नॉट स्टॉप कंज्यूमिंग सॉल्ट. बिना नमक का खाना तो नहीं खा सकते. तो हेंस इवन इफ द प्राइस ऑफ दिस कमोडिटी इज falling or rising, we will always have the demand for salt will always be stable. मतलब कि उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती है. ठीक, तो साइकोलॉजिकल डायनामिक्स में देर आर सर्टेन थिंग, जैसे कि वेबलिन इफेक्ट, बैंड वेगन इफेक्ट और स्नॉब इफेक्ट. स्नॉब इफेक्ट अब हम लोग पढ़ते हैं तीनों के बारे में. सबसे पहला वॉज वेबलिन. ठीक, देन सेकेंड वॉज bandwagon, and third is snob effect. Okay, when you're talking about these three kinds of things, जैसे जिसमें सबसे पहले दिए गए वेबलिन इफेक्ट, बैंड वेगन इफेक्ट और स्नॉब इफेक्ट. तो सबसे पहले देखो, दैट इज वेबलिन. द स्टेटस डिस्प्ले आइटम्स वेयर प्राइस ड्रॉप्स क्लियर आउट एक्सक्लूसिविटी वैल्यू. मतलब लिमिटेड लग्जरी वॉचेस, डायमंड एंड कलेक्टर आर्ट वर्क की अगर इन प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है वो कम हो जाता है, इनकी एक्सक्लूसिविटी कम हो जाएगी, लोगों को लगेगा कि अब ये तो कॉमन हो गया सबके लिए. ठीक, तो हेंस द प्राइस एंड क्वांटिटी विल ऑल्सो बी फॉलिंग. देन कम्स बैंड वेगन इफेक्ट. बैंड वेगन इफेक्ट होता है कि जब अदर पीपल और बिकॉज पीयर्स आर बाइंग इट, दूसरे लोग उसको खरीद रहे हैं, हैंस हम लोग भी उसको खरीदेंगे. फॉर एग्जाम्पल स्मार्टफोन्स हो गया, वायरल फैशन आइटम्स हो गया, एक्सपेंसिव क्लोथ्स हो गया, उसने पहना है तो हम भी पहनेंगे, उसके घर में कार है तो मेरे घर में भी कार होनी चाहिए. दैट इज नोन एज बैंड वेगन इफेक्ट. एंड नेक्स्ट इज स्नॉब इफेक्ट. स्नॉब इफेक्ट दैट टेल्स यू दैट जितने भी हाई इनकम कंज्यूमर्स होते हैं वो रैरिटी में बिलीव करते हैं. वो मतलब सब में नहीं आते हैं. दे डोंट फॉलो द अदर वंस बैंड वेगन में, जैसे कि उसने किया तो मैं भी उसको करूँगा. ठीक, वो मैं भी वही काम करूँगा. स्नॉब इफेक्ट होता है दैट टेल्स यू अबाउट एक्सक्लूसिविटी. एक्सक्लूसिविटी दैट टेल्स यू अगेन अबाउट कि दे स्टॉप बाइंग द प्रोडक्ट व्हेन इट बिकम्स कॉमन और पब्लिक. फॉर एग्जाम्पल बी स्पोक टेलरिंग और फाइन कलेक्टिबल्स. वो प्रोडक्ट्स जो अभी उनके लिए एक्सपेंसिव हैं बट बाद में उनको लगता है कि सबके पास ये चीज़ है तो आई विल स्टॉप बाइंग दिस प्रोडक्ट. हैंस इट इज़ नोन एज स्नॉब इफेक्ट. अब हम लोग इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ नोन एज चेंजेस इन द डिमांड. दैट इज़ मूवमेंट अलॉन्ग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. ठीक, तो सबसे पहले हम वी विल स्टडी अबाउट मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. नाउ वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजन बीइंग इज प्राइस. किस कारण जो डिमांड है वो शिफ्ट हो रही है इधर या उधर, सॉरी किस कारण जो कर्व है वो इधर या उधर हो रहा है. वाई इट इज़ हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ द प्राइस. ठीक, तो now we will study about the two concepts in this, that is extension of demand curve and the contraction of demand curve. A fall in the price of a commodity causes an expansion of units requested
टिगरिंग द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. ठीक, तो एक्सटेंशन और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व आपसे क्या कहता है, वो ये कहता है कि सपोज दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी. इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज फॉलिंग, द डिमांड is going to increase, so it will show a downward moving डिमांड कर्व. ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द कर्व अलॉन्ग विद द, देखो ये कैसे बना है, अगेन आई विल एक्सप्लेन यू द सेम थिंग. प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी. इफ द प्राइस, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस विल बी फॉलिंग. एक्सपैंड करना मतलब कि डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है, एक्सपैंड हो रही है. यू कैन यूज अ टर्म एज राइज, इट विल बी बेटर. ठीक, फॉल इन द प्राइस हो रहा है, प्राइस इज फॉलिंग. ठीक, हेंस अगर प्राइस यहाँ पर फॉल हो रहा है तो ऑब्वियसली द डिमांड इज गोइंग टू राइज. इट विल बी इनवर्स एंड इट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग. आप ये एक्सपेंशन दिखा रहे हो. एक्सपेंशन मतलब प्राइस, क्वांटिटी विल चेंज फ्रॉम Q to Q1 एंड प्राइस विल चेंज फ्रॉम P to P1. ठीक, देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड जो इसका जस्ट ऑपोजिट होता है. यहाँ पर हमने दिखाया था कि प्राइस जो है वो फॉल हो रहा है, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण जो डिमांड है वो क्या होगी, डिमांड विल फॉल. ठीक, इनवर्स रिलेशनशिप हमें शो करना है. तो हेंस व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ कर्व, तो इट विल ऑलवेज बी, this is original price and quantity. You are showing कि price is increasing, तो demand will definitely be falling. Hence the curve will be made like this. It will be upward sloping. Upward sloping मतलब कि पहले यहाँ तक बन रहा था, अब वो further increase हो रहा है. तो this is price, this is quantity. The price has increased to P1, the quantity has fallen to Q1. This is X, this is Y. यहाँ पर ये price लिखोगे, यहाँ पर क्वांटिटी लिखोगे. कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब डिमांड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, डिमांड इज फॉलिंग. ट्रिगरिंग मीन्स डिक्लाइन इन द यूनिट्स रिक्वेस्टेड, मीन्स डिमांड इज फॉलिंग. ओके, नेक्स्ट इज द शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, दैट इज चेंज इन द डिमांड. जो इससे पहले आपने पढ़ा था वो मूवमेंट था, वहाँ पर एक ही कर्व था. वो जो कर्व था वो ऐसे करके या तो अपवर्ड मूव हो रहा था या तो डाउनवर्ड मूव हो रहा था. दैट इज नोन एज एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, देयर आर मेन टू फैक्टर्स, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड. ये दोनों कॉन्सेप्चुअली, ये जो दो टर्म्स हैं वो आपको याद रखने होते हैं. येस, इंक्रीज का मतलब होता है कि ऑब्वियसली जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है. ठीक, एंड डिक्रीज का मतलब होता है ऑब्वियसली जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है. बट हेयर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दीज टू थिंग्स, तो यहाँ पर प्राइस रिमेन्स फिक्स्ड. प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी विल नॉट चेंज, ओनली द अदर फैक्टर्स. अदर फैक्टर्स आपने जितने भी डेटर्मिनेंट्स पढ़े थे वो सब जो हैं वो चेंज होंगे. प्राइस विल नॉट बी चेंजिंग. लार्जर वॉल्यूम्स आर परचेज्ड एट द एग्जिस्टिंग प्राइस लेवल्स, shifting the curve outward from D0 to D1. ठीक है, इसको कैसे बनाया गया ये समझो अब, एंड प्लीज़ राइट इट समवेयर, ड्रॉ इट समवेयर व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू. दिस इज़ द ओरिजिनल प्राइस एंड क्वांटिटी. सबसे आसान तरीका होता है, दिस इज़ प्राइस एंड क्वांटिटी. अब सपोज करो कि कंज्यूमर की कॉजेज़ भी यू हैव टू राइट इट. आपकी बुक में डिफरेंस बिटवीन में कॉजेज़ भी बहुत अच्छे से दिए हैं. कंज्यूमर की इनकम जो है वो राइज हो रही है. प्लीज़ रिमेंबर, इंक्रीज और डिक्रीज या ओवरऑल शिफ्ट इन द डिमांड कर्व में कभी भी प्राइस विल नॉट चेंज. कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर पॉजिटिव, देयर इज द राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स का प्राइस महंगा होगा तभी तो हमारी डिमांड महंगी होगी, डिमांड ज़्यादा होगी. एंड fall in the, एक मिनट, fall in complementary. ठीक, तो उस टाइम पर क्या होगा, इफ द प्राइस ऑफ अ ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है, किसी भी इसी कारण से कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पॉजिटिव हो गए हैं, राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स हो गया है,
तो हमारे सेम प्राइस पर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो चेंज नहीं होगा, बट उसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जा रही है, हैंस द क्वांटिटी विल बी अगेन। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर नया प्राइस एंड क्वांटिटी शिफ्ट हो रहा है वहाँ पर इट विल बी मेड, तो जो कर्व बनेगा वो ऐसे बनेगा। कर्व कैसे बनता है, इट विल बी मेड लाइक अर्लियर वॉज दिस एंड नाउ इट विल बी राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द कर्व। ओके, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द डिक्रीज इन द डिमांड कर्व, जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं उसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इनकम जो है वो फॉल हो जाएगी, टेस्ट जो है वो अच्छे नहीं है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कंज्यूमर्स डिसलाइकिंग इट, देन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स का जो प्राइस है वो फॉल हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्रीज का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। भाई पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तभी तो कार की जो डिमांड है वो कम होगी, तो ओरिजिनल प्राइस एंड क्वांटिटी कितना था, ये था, ठीक। देन फॉर एनी रीजन इफ द प्राइस एंड क्वांटिटी में क्वांटिटी प्राइस विल रिमेन सेम बट द क्वांटिटी शिफ्ट्स फ्रॉम Q to Q1 इट विल बी अ डिक्रीज इन द डिमांड कर्व। आपको ये एरो से शो करना है कि जो पहले का डिमांड कर्व था वो ये था, उसके बाद जब शिफ्ट हुआ तो वो ये हुआ, तो इसको यू कैन मेंशन इट एज DD और D1, या इसमें जैसे मेंशन हुआ है फ्रॉम D0 कर्व टू D1, ठीक। एंड देन द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम आर गिवन कि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में ये जो है देयर इज इंक्रीज इन द प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट डिमांड, बट येस इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्राइस इज फॉलिंग, ठीक, बिकॉज द प्राइस ड्रॉप्स, बट यहाँ पर एक्सपेंशन इज द प्राइस परचेजिंग वॉल्यूम्स, बट here the price is not the factor, there are other factors than price, ठीक। तो यहाँ पर the downward sloping, there is downward slide and here there is a parallel rightward shift in the demand curve. Then examples are given, price is changing from 10 to ₹8, the demand is 100 to 150, here the price will remain fixed but the demand will rise to 100 to 150. मेन फैक्टर्स इसमें इज़ द मार्केट प्राइस एंड हेयर इट कैन बी मोर इनकम फेवरेबल लाइफस्टाइल ट्रेंड्स, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड द डिक्रीज इन द डिमांड कर्व। अगेन सबसे पहले इसमें जस्ट ऑपोजिट इसका दिया हुआ है कि प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इज राइजिंग, हैंस देयर इज कॉन्ट्रैक्शन और फॉल इन द डिमांड कर्व, डिमांड, एंड देन डिक्रीज इन डिमांड में कि परचेजिंग वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, वाई, बिकॉज प्राइस लेवल विल रिमेन सेम। हेयर देयर इज अ अपवर्ड स्लाइड एंड हेयर देयर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, ठीक। प्राइस यहाँ पर 10 to 12 हुआ, क्वांटिटीज ड्रॉप्स फ्रॉम 100 to 80 यूनिट्स, एंड हेयर प्राइस इज फिक्स्ड at ₹10, but yes the demand will shift from 100 to 50 because of external या other factors. Negative external variations होते हैं decrease in demand में, जैसे कि कम wages हैं, कम wages को you can consider as low income, falling trend popularly, that is the taste and preferences are not favorable, and isolated increase in the retail market price, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक फैक्टर है, that is the price is increasing, hence the demand is decreasing. Okay, so I hope you all have understood this much. If you have liked the video, please do share it with your friends, with your best friends, and keep preparing for your exams. Thank you.